perhaps no days of our childhood we lived so fully as those we spent with a favorite book. Indeed, most of us grew up with books, as we have to deal with them at different stages of our education and also in our professional lives. In today's time, where most of us love reading, we still fail to acknowledge the role of the industry that produces books, is responsible for its marketing and promotion, and incorporates us as readers by getting them to us. Publishing houses are the backbone of the industry responsible for producing, distributing, and marketing books to readers. To take us through various aspects of book publishing, the various functions within publishing, the stakeholders, the career prospects, and the training, we have among us Mr. Sridhar Balan sir, who is presently serving as a senior consultant with with Ratna Books, which publishes translations from English languages into English. Formerly, Mr. Balan was associated with Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and the Northeastern Hill University, Shillong, as an academician. He also worked with Oxford University Press, India, for almost 20 years as a senior director. He later joined Ratna Sagar Publishers, where he worked with schools on workshops to strengthen the reading habit among children. Mr. Balan has been a member of the UNESCO World Book Capital Network and helps to further the WBC Charter objective to foster a book culture in cities. He has been a prolific literary columnist in almost all major newspapers, and his book, Off the Shelf, On Books, Book, People, and Places, Speaking Tiger Books, New Delhi, has been extensively reviewed in the media. It's our privilege to have you among us today, sir. We welcome you to enlighten us with this talk on a career in the publishing industry titled Reading the Book, Reading the World. The talk will be followed by a short interactive session. Thank you. Thank you very much for this very warm welcome. It was slightly unexpected. Let me begin by felicitating and thanking Dr. Rajesh Giri, the principal of Rajdhani College. From his words, I'm meeting him for the first time today. I had a little bit of measure that he's actually a leader, and he's a wonderful spokesperson for the college, and he is a great motivator. And I think that उनसे जो हमें जो तजुर्बा जो एक्सपीरियंस उनके साथ यहाँ होने से I think he's a great asset to this college. And उन्होंने तो पहले ही कह चुके हैं कि थोड़ी सी देर से आए, और उनकी जो पूरी उम्मीद थी कि उर्वशी तो उनके पहले पहुंच ही जाएगी, तो कितना भी कोशिश करें मुझे पहले आ जाती है। और मुझे पता नहीं है कि उर्वशी ने करियर काउंसलिंग के अवसर पर मुझे क्यों निमंत्रण दिया। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। द ओनली टाइम आई मेट हर वाज ऑनलाइन, फिजिकली मिला नहीं हूँ। वी हैड अ कोर्स फ्रॉम द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑन पब्लिशिंग, एंड इत्तेफाक से जो है ये 93 पे शुरुआत हुई थी, और इत्तेफाक से मैं उसी साल से उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 93 से। उनको कोई और नहीं मिला तो मुझे तो जुड़ा ही दिया, तो अब तो 30 साल से ऊपर हो रहा है। तो इस टाइम जो है कोर्स अब तक कोविड के बाद ऑफलाइन शुरू नहीं हुई, तो इस टाइम ऑनलाइन शुरू हुई अगेन। तो हमें जो पार्टिसिपेंट्स काफ़ी जगह से ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, तो एक शख्स थी अपना राजधानी कॉलेज के मशहूर प्रोफेसर उर्वशी अरोड़ा। तो पता नहीं है उनको इतने सारे हमारे थे, इतने सारे बढ़िया लोग मुझसे बहुत बेहतर पोजीशंस में है और काम करते हैं, बट किसी तरह से करियर काउंसलिंग के ऊपर उन्होंने जो ये प्रोग्राम है, उनको एक ही बंदा नजर आया, ये याद आया और मेरा नाम आ गई। तो शी हैज बीन प्लानिंग दिस फॉर द लास्ट, आई वुड से अबाउट 2.5 to 3 months. She has been planning this,
एंड इन बिटवीन शी सजेस्टेड ऑफलाइन, और मुझे थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए थी और इसको ऑफलाइन ही कर देते, पर मुझे भी काफ़ी दूर से आना पड़ता, और आई एम कमिंग राइट फ्रॉम द डीप रिसेस, साउथ दिल्ली से आ रहा हूँ तो फर्स्ट क्लास से। तो और जब ये बात हुई थी तो मैं उसके बाद मुझे एक यूनेस्को की मीटिंग पे जाना था बाहर, वर्ल्ड बुक कैपिटल की, जो ग्वादलहारा मेक्सिको में हो रहा था, और वहाँ जाने के लिए मैंने इट्स एन एडवेंचर, और जाने के लिए मुझे टोरंटो शहर कनाडा से गुजरना था, और टोरंटो की टेम्परेचर उन दिनों में करीब -10-12 था ऐसे ही, और अगर हवा तेज हवा निकलती है तो -22 आराम से पहुंच जाती है, टेम्परेचर तो आराम से पहुंच जाती है, -22 हम नहीं पहुंचते। और मैंने सोचा कि इसको कैसे करें। लकीली माय सिस्टर, मेरी बहन और ब्रदर सब रहते हैं, तो वापसी में दैट डे ऑफ कोर्स मैं शाम की फ्लाइट से निकल गया था टोरंटो लैंड करते ही, और वो भी नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, 16.5 घंटा एक एयरक्राफ्ट में बैठना। ऑफकोर्स लकीली किताबें थी मेरे पास, और थोड़ी सी जो साथ वाले थे वो लोग भी बहुत बढ़िया थे, तो बस थोड़ा से उठ के चलना पड़ता, एक जगह पे तो बैठ नहीं सकते 16 घंटा। बट वापसी में आई स्पेंड टाइम विद माय सिस्टर। तो द रिडीमिंग फीचर वाज कि आई मेट माय नेफ्यू का लड़का, जिनकी शादी वहीं हुई है, और ही हैज 3 स्मॉल डॉटर्स, and I'm meeting them for the first time age 6, 4 and 8 months. तो बहुत बढ़िया लगा उनसे मिलने का। तो मेरी परिचय जो है, आई एम व्हाट इज कॉल्ड BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन। तो मेरे पास कुछ गिफ्ट तो होता नहीं है देने का, तो सिर्फ किताबें। आई एम व्हाट इज कॉल्ड एन इम्पॉवरिश्ड पब्लिशर, वेरी पुअर। तो किताबें ले गया था मैं। द मीन टाइम मेरी सिस्टर ने कहा था कि ऐसा है कि ये लोग थोड़ा से देर से आपकी परिचय होगी, तो आप पहले से मत बोलिए मैं हूँ, तो फिर वो पिछड़ जाएंगे और बात ही नहीं करेंगे। किसी तरह से इत्तेफाक से दे टुक टू मी लाइक एनीथिंग। मैंने, आप सोच नहीं सकते, फर्स्ट थिंग द एल्डर गर्ल माया 6 साल की है, उसने कहा सारों को, आप लोग को सबको नीचे आना बेसमेंट में। नीचे में हमने कहा क्या, क्लासरूम है, आप लोग सब छात्र हैं, मैं टीचर हूँ, और टीचर आके बैठो। और ये तो आपका जो है, मैं आपको घर बने हाउसेस डिवाइडेड जो होती है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाउसेस होती है, बोर्डिंग स्कूल में हाउसेस होती है, तो कह रहा था स्टार या आपको एक को स्टार बनना है, एक को और कुछ बनना है, तो सबका ऑल्टरनेट, और आपको याद रखना है कि क्या है। तो बहुत सारे उधर एक पढ़ाई की लेसन भी हुई, बट किताबें उनको बहुत अच्छा, तो स्पेशली वेरी हैप्पी। और बहुत सारे ये भी हुआ, फिर बाद में उनको तो मेरा जो चेहरा देखा तो उनको तो दिलचस्पी, उनको कहा कि ये चेहरा तो कुछ करना है हमें, ये चेहरा तो बहुत ही ये है, तो इस पर तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, इतने साल तो हो गया, मेरी वाइफ भी कुछ नहीं कर सकती मेरे चेहरे लेके। बट इन्होंने क्या किया, कहा कि मेकअप करना है, तो उन्होंने मेकअप भी डाल दिया, जो एडिबल मेकअप है। एनीवे, so that was the redeeming feature of that. So I hope that in this brief an hour or so कि आप निराश न रहेंगे, आपको थोड़ी सी दिलचस्पी होगी। और जो गिरी साहब ने कहा था कि एक थोड़ी सी लाइट रखें इसको, तो थोड़ी सी मैं भी थोड़ा बीच में लाइट ही रखूंगा इसको, बहुत लाइट। बट इन द मीन टाइम आई स्टिल बी एबल टू गिव यू सम सब्सटेंस, सम। पहले जो है कि अगर मैं बुक पब्लिशिंग के बारे में कुछ भी आपको जानकारी देने के पहले मैं एक तो पूछूंगा आपसे कि किताबों के साथ क्या रिश्ता है आपका। तो ये तो मैं जरूर पूछूंगा। ये रिश्ता इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये नहीं है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के छात्र हैं तो किताब के साथ तो आपका तो एक गहरी रिश्ता तो है कि आपको तो किताबों की यूज करना है। कोई अपने बैग में एक आध किताब रखा हो, अदर दिन दी आपका क्लास नोटबुक। कभी कभी आप उस तरफ जाते हैं, एक लाइब्रेरी करके एक कुछ क्षेत्र है ना, तो कभी उसकी तो थोड़ी सी मुलाकात तो करते हैं। आपने तो अपना लाइब्रेरी कार्ड तो बनवाया होगा कंपल्सरी बनवाने के लिए, बिकॉज क्यों लाइब्रेरी कार्ड बनवाया है, क्योंकि उसकी फीस जमा करना है लाइब्रेरी की, तो वो सब है फिर उसका, तो आपने वो किया है। और कभी कभी आपको जो है
टाइम पास करने के लिए या कुछ कभी आप कुछ किताब ऐसे ही लेजर रीडिंग या जनरल रीडिंग के लिए कुछ खोलते हैं, पढ़ते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी फेवरेट ऑथर कौन है या क्या आपने पढ़ा रिसेंटली, बट ये करते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा। बिकॉज आजकल जो है मैं थोड़ी सी मुझे फिक्र ये लग रही है कि रीडिंग जो हैबिट जो है वो थोड़ा से कम हो रहा है, या एटलीस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने साफ दिखाई नहीं दे रहा। जब भी मैं दौर पे निकलता हूँ, जब मैं निकलता हूँ कहीं भी, आई डोंट सी पीपल रीडिंग आइदर ऑन ट्रेन और बसेस और एयरक्राफ्ट, तो व्हाटएवर। आई हैड अ फ्यू पीपल ऑन द एयरक्राफ्ट बट आई डोंट फाइंड। तो वाकई लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम तो हमें बनाना पड़ेगा। बट इट विल बी वेरी सैड कि अगर रीडिंग की जो है एक तरह से जो हैबिट, और कॉलेज में हम अच्छे हैबिट की जो है बढ़वाना चाहते हैं और बुरी हैबिट को कम करना चाहते हैं, सही? तो आपको ये तय भी करना है कि रीडिंग जो है पढ़ना गुड हैबिट है कि नहीं, तभी आप उसको बढ़ावा देंगे। तो वो मुझे कम दिखाई दे रहा, हो सकता हो भी रहा है या घर पे जो भी है। बिकॉज अगर आप रीडिंग का जो कर रहे हैं तो आप जो है आपके मित्र के साथ तो उठना बैठना चाय पीना सब तो आपका उनके साथ है, बट आप किताब निकालते हैं या किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक तरह से आपके मित्र से आप थोड़ा अलग ही हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमारे साथ गपशप करें, हाँ हमारे साथ थोड़ा आके कैंटीन में थोड़ा बैठ जाए, हमारे साथ थोड़ा से एक आध पता नहीं क्या लगा है पिक्चर तो देख ले, या थोड़ी सी घूमते हैं कहीं आसपास में, मुझे पता नहीं है कोई झील वील कुछ है कि नहीं, तो कहीं चले जाते हैं, या बहुत हो तो रोहिणी में जापानीज पार्क चले जाते हैं आप। तो मेरा जो कहने का ये मतलब है कि अगर आप किताब खोल के आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक अकेलेपन आप महसूस करेंगे, बिकॉज यू आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड यू आर अलोन इन रीडिंग। ये बहुत आपको ये करना है कि आप वो समय दे पाएंगे कि नहीं, बिकॉज देर आर सो मेनी प्रेशर्स ऑन योर टाइम, आपकी जो वर्क और आपकी जो ये है। तो आजकल जो है मुझे एक लग रहा है कि आप लोग सब अब कॉलेज में भर्ती हो गए, तो मेरी भी पूरी उम्मीद है, बिकॉज हमने शुरुआत की थी गाना से, आशाएं, और जब हम छात्र होते हैं तो बहुत सारे आशाएं होती हैं, उम्मीद भी बहुत होती है हमारी। तो बहुत बढ़िया इन्होंने जो गाना गाया, बिकॉज हमारी एक प्रोग्राम जो हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रत्ना सागर से कर रहे थे, तो हमारे रिसोर्स पर्सन इसी गाने से शुरुआत करते हैं, आशाएं, बिकॉज टीचर्स की भी काफ़ी आशाएं होती हैं और बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। तो माय पॉइंट इज कि जब हम कॉलेज में भर्ती होते हैं तो स्कूल से तो पास हो गए ना, होपफुली स्कूल का तो सारा एग्जाम दे दिया ना, पास भी हो गए, बस वो तो देना पड़ता है, नहीं तो आपके एडमिशन भर्ती नहीं होगी। तो स्कूलों में जो है वी हैव टू ले द फाउंडेशन फॉर रीडिंग इन स्कूल्स। दैट इज व्हाई आई हैव बीन डूइंग दिस प्रोग्राम लास्ट 15 साल से, कि रीडिंग को कैसे इसको एक तरह से हम मजबूत कैसे करें, हाउ डू यू गेट चिल्ड्रन टू रीड। अगर एक तो जो है कि looking at you all are students, but there is a possibility that all of us, there is every possibility all of us are associated with family, and we have younger people, we have older teachers who may have young children, and one of the concerns of a lot of young school teachers was how do we get our children to read, how do we get our children to read। तो मैंने इस किताब जो मेरी है, I have put a chapter on reading, which is a workshop on reading that I do over here, which I do in the schools. But first, I think we need to start with reading at home. तो टीचर्स के साथ हमेशा मेरा एक सवाल होता था कि आपको कब थोड़ी सी फ्री टाइम मिलती है, कब थोड़ी सी लेजर टाइम मिलती है। तो हमेशा टीचर कहते हैं, स्कूल के टीचर्स, और हमेशा मुझे लग रहा है कॉलेज के टीचर्स भी यही कहते होंगे, हर कहाँ समय मिलता है, हम लोग इतना बिजी, इतना मैंने क्या बताया, स्कूल का प्रिंसिपल हमें बहुत बिजी रखती है। ये वाली जो है टीचर्स आपने देखा है स्कूल में, आप लोग कोई अपने स्कूल वापस गए पास आउट होने के बाद, सर पढ़ लेंगे कहाँ जाएंगे हम, आप कभी कभी अपने टीचर्स को याद रखते हैं, रखते हैं, और आपकी भी अपने मन में लगता है कौन अच्छा टीचर हो कौन ना हो,
ऋषि मैम का तो काफी तारीफ हुई है, पता नहीं क्लास में कैसे है, पूरी ज्यादा ऐसे तो मिल नहीं सकते, कोई थोड़ा मिल लिए बस, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, सबको नोट करती है, ऐसे बहुत बहुत कठिन सवाल देती है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता वैसे देती है। तो हम लोग जो है, जब मैंने ये स्कूल टीचर से पूछा कि सैटरडे संडे आपको थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, सर क्या बात कर रहे हैं आप, सैटरडे हमारा पूरा माने इतना सारा काम होता है, टीचर हमको प्रिंसिपल मैडम हमेशा बुला लेती है, और स्कूल की जो है, अब मैं एक और कहूंगा आपसे, प्रिंसिपल को देखेंगे या टीचर्स को, सारी लेडीज है, आपने देखा है ये? Yes, sir. हाँ, आपने Yes, देखा है, sir. मेल टीचर जो है एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया। इसकी जो है, मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि मेल टीचर्स को बचा के रखिए। मेल टीचर नहीं मिल रहा, और मैंने इतनी सारी वर्कशॉप्स की, मैंने कहा मेल टीचर कहाँ है, कह रहे हैं कौन मेल टीचर, दे हैव नॉट सीन, हम लोग तो 10 साल से तो देखी नहीं, तो एक आध मेल टीचर मिलेगा मेरी मैम के जैसे, तो वो पीटी का टीचर, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स पे है, या योगा इंस्ट्रक्टर, क्या है बॉस, कोई समझे नहीं कर रहा है, कह रहे नहीं हम लोग तो टीचर इसमें फंस गए हैं, हम लोग तो तनख्वाह भी इतनी मिलती है, वो बढ़िया कॉर्पोरेट ये जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, पैसे तो वो ला रहे हैं, मेल टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ावा के लिए अलग किया, तो मैंने कहा ठीक है, तो आप लोग को टीचर ये नहीं है, तो सैटरडे भी बिजी रहते हैं, तो संडे थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, क्या बात कर रहे हैं सर, संडे घर की काम इतने सारे, ये करना है वो करना है, मैंने कहा देखो सारा बहाना छोड़ दो, हम एक ये बता रहे हैं जिसका आपका बच्चों का भविष्य बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपको करना है, कह रहे ठीक है, मैंने कहा देखिए आप लोग सब फैमिली के हैं, संडे के दिन आप अपने अपने हस्बैंड के साथ करीब 30-45 मिनट उनके साथ आप बैठ सकते हैं, एक ही सोफा पे करीब, इंडिया, बिना झगड़ने, बिना झगड़ा आप बैठ सकते हैं कि नहीं, यू विल बी सरप्राइज, बहुत टीचर सोच में लगे, कह रहा है सर आधे घंटे हो तो हो जाएगा, 45 तक मत खींचिए आप, तो 45 तक खींचे तो कुछ ना कुछ झगड़ा तो शुरू होने वाला है, हो भी जाएगा, ये मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही मैंने, बट आई वाज नॉट गोइंग इनटू फैमिली काउंसलिंग, मेरा वो नहीं है, तो मैंने कहा और वो आधे घंटे में सर हमें क्या करना है उनके पास बैठ के, तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, आप दोनों को कुछ चीज जो पढ़ने के लिए तो आपको अच्छा लगता है वो आप उठा पढ़ सकते हैं, कह रहे थे पढ़ तो सकते हैं, बात तो नहीं करना है ना, ऐसे बात नहीं करना है, देखिएगा ये असली बात है, 15 साल से कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने जो है, मैंने कहा अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, बच्चे जो है देखेंगे मामा पापा क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो भी जाके अपना किताब लेके आए और कहेगा मैं भी पास बैठ जाता हूँ हमेशा, तो और आजकल तो रिश्ता भी ऐसे हो गया मियाँ बीवी का कि बीच में आके बच्चा बैठेगा, तो वो आके बैठेगा तो पढ़ लेगा, अगर जब वो किताब लेके पढ़ता है तो चाइल्ड में कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स या न्यू एक्सप्रेशन, पेरेंट्स आर देयर टू एक्सप्लेन कि क्या है इसमें, तो एक तरह से एक सेशन हो जाती है वेयर ऑन संडे मॉर्निंग्स द फैमिली इज रीडिंग टुगेदर, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर, साथ करते दे स्टेज टुगेदर, उसके बाद इसकी अमेंडमेंट आई, द फैमिली जो प्रेज टुगेदर, जो प्रार्थना करती है स्टेज टुगेदर, अब मैं सोच रहा हूँ द फैमिली दैट रीड्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, और इस पे जो ऐसा है इट विल बी वेरी हैप्पी फैमिली, आर यू अग्रीड? Yes. इट विल बी वेरी क्वाइट फैमिली, कोई शब्द नहीं होगी उधर से, चिल्ला चिल्ली नहीं किए, पड़ोस भी बहुत शांत रहेंगे कि आपके घर से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रहा, क्या बात है, कभी तो इतना मैंने जोर चिल्ला के आप लोग सब झगड़ा कर रहे थे, आज क्या हुआ, मैंने उस टीचर से पूछा कि ये बढ़िया है, तो आप खाली अपना, सारे लोगों के पास आजकल मोबाइल फोन है,
अभी भी थोड़ी सी आवाज़ दी एक मोबाइल को, तो उसमें कैमरा होती है फ़ोन पे। मैंने कहा एक सेल्फी निकालिएगा, खींचिएगा और मुझे भेज दीजिएगा, कट करिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा ईमेल है। नतीजा क्या निकला? 15 साल से अब तक मुझे फोटो नहीं आया, एक फोटो नहीं आया। तो मेरा जो ये है कि द ओनली कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ इज कि लेडी टीचर्स जो है दे वेरी शाई, बहुत शर्मिंदा है, या उनको जो है कैमरा फंक्शन अपना फोन में नहीं आता, या तीसरी बात ये नहीं हो रहा। आई एम टेलिंग यू एक बात, आप लोग तो अभी यू ऑल आर वेरी यंग, बट व्हेन यू डू grow into adulthood and into parenthood, you have to take advantage कि हम बच्चों के साथ कितने करीब रहे जब वो लोग छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे आपकी जरूरत नहीं है, सोचिएगा आपकी जरूरत नहीं है। You have to lay that foundation, and one of the things of laying that foundation is to do activities which will get you close with your children, and one of the activities is reading and explaining. It's a wonderful activity. There has been enough done on this. Now comes the question of publishing. What is publishing? Is it something to do as a career? What is it? Now, when we look at career counseling or hard choices, there is a difference in the options that are available to you now and what are available to me then. And in between what were available to them, right? This row in the first row is the intermediate generation. I am the older generation and you are the younger generation. Okay? So we have all that. Now, I do not know now how it is and what disciplines you all are and what subjects you all are teaching. I mean, study, I do not know. I asked Mary ma'am, she said, I have my class sir at 11:30. सारे क्लास को मैं इधर ही बुला दिया। तो सारे कॉमर्स तो होंगे इधर, हाँ, उर्वशी मैम को मैथमेटिक्स तो होनी ही है, कैसे उर्वशी के मैम के स्टूडेंट्स ना हो तो फिर तो नेक्स्ट क्लास में तो आप बचता ही नहीं। एंड देन देयर हैव टू बी द अदर जनरल स्टूडेंट्स, व्हाट आर दिस डिपेंडिंग ऑन, बट एंड आई एम वेरी क्लियर एंड विद ऑल डेफरेंस टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टीचर्स एंड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, when we have a hierarchy of subjects as far as I think not just India but the world is concerned. The science students are considered to be बहुत अक्लमंद, you know, they are the kind of top, I mean like. उसके बाद जो है नंबर आती है कॉमर्स की, उसके बाद ये ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, आर्ट्स कह के उसको नीचे ही दबा देते हैं, ठीक है? This is very important. This hierarchy of subjects is partly a reflection of hierarchy of subjects at home, right? Yes. बच्चा क्या कर रहा है? अच्छा, 10वीं में क्या सब्जेक्ट लिया, 12वीं में क्या लिया? अगर आप कहेंगे कॉमर्स लिया, ओ अच्छा, साइंस में उतना बढ़िया नंबर नहीं आया क्या? तो और कॉमर्स ठीक है, चल जाएगा पास। अगर कोई कहेगा कि जैसे हमने अभी दिनेश जी से मिला, जो प्रोफेसर थे यहाँ और जा रहे हैं टू मैत्री कॉलेज, ऑल गर्ल्स कॉलेज, वो दूसरा किस्म का एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, तो बहुत बढ़िया है। वैसे मैं उनके बारे में कह सकता हूँ इसलिए बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड आई एम द फर्स्ट बैच एंड आई स्टार्टेड टीचिंग इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1975 when all of you are babies. तो देखिएगा कि आई कैन से दैट ऑल हिज टीचर्स आर फ्रेंड्स ऑफ माइन। और हिस्ट्री जो है, अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या ऐसे सब, तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, जो रिश्तेदार जो पूछते हैं सब्जेक्ट ही बदल देते हैं, कह रहे इसका तो नंबर ही नहीं आया होगा, बेचारा हिस्ट्री लेकर क्या करेगा, या जो पॉलिटिकल साइंस लेके। अब जो है इसमें सब करियर अपॉर्चुनिटीज आ गए, खुल गया, स्कूल में करियर काउंसलिंग शुरू हो गई, विच यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस। एनिमेशन की बात होगी आज,
and I'm going to link up animation and publishing just now. But that has opened up a whole field which we did not know, and I'm happy that Giri sir spoke about animation. But इसके अलावा अब जो है बहुत सारे आ गए. पहले सब ऐसे था कि आपको साइंटिस्ट फर्स्ट ग्रुप लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या सेकंड ग्रुप लेना है तो आपको मेडिसिन पे जाना है, या ठीक है अब सीए का पता नहीं कुछ बन रहा है, सीए बन रहे हैं, सीएस बन रहे हैं, तो ठीक है एक कॉमर्स का हम उसमें थोड़ी सी आपको अंक या मार्क दे देते हैं. ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस तो बेटा तू तो गया, मैंने पता नहीं, पिताजी को कह देना दुकान खोल दे तो वहां देखिए. Seriously speaking, let me tell you, I'll give two examples only quickly and then I'll come to the subject from my own family. One was my nephew, my sister's son. DPS से पास हुआ, school, आरके पुरम. Father is an engineer, absolute IIT, Naval University, topper. Mother is journalist, English literature, Calcutta University. इनसे कह दिया गया कि तुम्हें तो साइंस करना है, और उसको ये आजकल जो है आपको बहुत जिक्र हो रही है, खासकर एक जो मैं कहता हूँ टीचिंग शॉप बैजू के लेके, बट बैजू को आप छोड़ दीजिएगा तो आपको जो है इंजीनियरिंग करना है तो प्रिपरेटरी कोटा नहीं जा सकते, तो यहीं से करवाना पड़ेगा, यू हैव टू जॉइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो इसको भी भर्ती कर दिया. नाउ इसको जो मन नहीं था, आई यूज्ड टू ड्रॉप हिम एट दिस ट्रेनिंग, एट दिस इंस्टीट्यूट एंड ब्रिंग बैक. डीपीएस में ही वाज वेरी गुड इन ड्रामेटिक्स, इन डिबेट में ही यूज्ड टू टॉप, एंड क्विज में बिल्कुल डिस्कस. बट डीपीएस में अगर आपने वो आरकेपुरम पे गए, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दैट स्कूल, वहाँ एक एनहांस्ड प्रोग्राम भी होता है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए, और एक तो इसको उसमें सब हुआ था. एंड देन ऑन द डे 12th बोर्ड एग्जाम, उन दिनों में नेट पे नहीं आता है, आपको बोर्ड पे आता है, तो उस पे जब गए, हिज मदर वेंट, फादर वाज अवे इन बॉम्बे फॉर सम मीटिंग, पहले बॉम्बे में ही काम करते थे मुकुंद में, तो ही हैड गॉन फॉर सम मीटिंग, तो मदर माय सिस्टर और उनको ले गया. वहाँ जाके देखा इसका, लोग कोई बात कर रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई बर्फी दे रहा है, किसी का 90% आया, किसी का 92 आया, किसी का 94 आया बच्चों का. तो माय सिस्टर वेंट एंड इसका नाम है अश्विन. अश्विन का क्या है रिजल्ट? तो किसी ने कहा आप ही अंदर जाके देख लीजिए. फिर अंदर गए तो किसी ने कहा इनका रिजल्ट, वो आप अंदर गइए, अंदर मीन्स कमरे के अंदर. तो माय सिस्टर का बिल्कुल ये हो गया, मैंने बिल्कुल दिल ठंडा हो गया कि ये इसकी क्या नंबर आई होगी, पास या फेल, कैन यू इमेजिन? यू नो he had got his CGPA, cumulative grade point was in 70%, इसको मिला. बट लोगों ने टॉपर्स और 90 एंड प्लस, तो 70 का तो यू नो द प्रेशर ऑन कॉलेज एडमिशन, राइट? आप लोग को सब पता है, अभी भी आपको पता है राजधानी में कैसे आपको एडमिशन मिला, ठीक है? तो यू कांट, इट इज सच अ प्रेशर ऑन एडमिशन, वेरी वेरी, प्लीज कम. द प्रेशर ऑन एडमिशंस इज सो ग्रेट that you know what will he do? ये लोग रहते थे इन चिराग एनक्लेव, एंड फ्रॉम आरकेपुरम यू कम ऑन द आउटर रिंग रोड, एक सीधा रास्ता है. हिज मदर, माय ओन सिस्टर, टोल्ड हिम कि पूरी एक लेक्चर दिया कि तुम्हें जो 70% आया है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन लाइफ. मैंने इतना उम्मीदें थी, अब पता नहीं, तुम्हें आईआईटी सब जो भी है भूल जाओ, पता सोचो कि क्या करो, राइट? उसी दिन उसको ऊपर छोड़ के सडनली शी डिसाइडेड दैट शी विल गो टू द मार्केट में इसको सडनली लगा रही है, इसको तो इतना बढ़िया, मैंने जोर से मैंने लेक्चर दिया, बिल्कुल चुप रहा बेचारा, कुछ नहीं बोला. वैसे नॉर्मली बहुत बोलता है. तो शी गॉट वेरी वरीड कि मार्केट में मैं होके आ रहा हूँ, ये कहीं कुछ करना बैठे. तो सीधा ड्राइवर को बोली गाड़ी घुमाओ, वापस चलते हैं. वापस गई घर पे, तो घंटी बजाई, तो इसने दरवाजा खोला, सही सलामत था. तो शी वाज वेरी हैप्पी. उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ पे पीछे रखा है, और इसको बस शी जस्ट लॉस्ट हर टेम्पर. कह रही थी इतना हुआ, मैंने अभी आई हैव गिवन यू अ लेक्चर, तुम्हारा आया नंबर इतना,
और जब तुम ऐसे बैठे रहोगे और कुछ सोचोगे कि मैं आगे क्या करूंगा, भविष्य क्या होगा मेरा, तुम तो चेहरे पे मुस्कुराहट, माने नथिंग कैन, क्या रखे हो पीछे, इसे नथिंग नथिंग। तो देखा कि एक कुछ पिंक स्लिप है, तो देखिए टेलीग्राम था, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सिक्योर्ड एडमिशन फॉर द फर्स्ट ईयर, प्लीज कम एंड जॉइन। अभी तक मैं उससे ये निकाल नहीं पाया कि इसने रजिस्ट्रार को कैसे फोन करके कहा आज ही रिजल्ट भेजो, जैसे मेरी 12वीं आई है तुम इसी दिन मेरे लॉ स्कूल का भी रिजल्ट भेजो। ही गॉट एडमिशन देयर, दे हैड नॉट इवन थॉट कि इसने जाके लॉ स्कूल पे एडमिशन दिया। ही पूरा 5 साल ये लोग गए ग्रेजुएशन के लिए, टीचर ऐसे एक टीचर को मिले, उसीलिए मैंने कहा है कि कभी भी पेरेंट्स को टीचर से नहीं मिलो, ना स्कूल पे, ना कॉलेज पे, ना यूनिवर्सिटी पे, प्लीज कभी नहीं होना चाहिए। और वही टीचर से मिले, जब पूछे उससे यू आर अश्विन पेरेंट्स, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कैन नॉट डिनाई ऑल्सो कि आप कैसे करें, तो इन्होंने कहा यू नो अश्विन सारा एग्जाम तो पास कर दिया, उसने एक एफर्ट नहीं की, अगर थोड़ी सी मेहनत करता ही वुड हैव टॉप द क्लास, पर उसकी इंटरेस्ट नहीं थी, ही वाज इंटरेस्टेड इन क्विज इन डिबेट एंड ऑल ड्रामेटिक, but he got the first job placement, he joined a top law firm बॉम्बे में, वहाँ बढ़िया करके he now has a house on Worli Seaface Road बॉम्बे पे, he is practicing now, उसको अपना प्रैक्टिस कोलाबा में खोल दिया, he is one of the माने really upcoming lawyers, below 40 top achievers में उसकी फोटो और ये नाम से मैगजीन में। So what was the point? And my our own son was not interested in sciences, उसने क्या किया, मीडिया स्टडीज पे मास्टर्स की फ्रॉम बोर्नमथ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड पे, एंड ही गॉट अ जॉब एट दैट टाइम विद मीडिया विद एनडीटीवी। और उसने जो है एज पार्ट ऑफ हिज थिंग, उसने एक फिल्म बनाई, सीरीज कॉल्ड, आई डोंट नो एनी ऑफ यू हैव सीन इट, इट वाज टेलीकास्ट ओवर एनडीटीवी ओवर कंटिन्यूअस वीक्स, इट वाज कॉल्ड सेव आवर टाइगर्स। सेव आवर टाइगर्स पूरी जो है उसने टाइगर रिजर्व पे बहुत घूमा, and there was a lot of effort done to, so he is more interested in environment, he is more interested in this, and उस पे वो मीडिया पे आ गया, उसके बाद अभी he is somewhere else, but बॉम्बे में ही था। The question is this, that you must do a profession in which you feel happy, and थोड़ी सी पैसा तो आना चाहिए, आजकल कभी मिलता है, किसी से भी पूछो कोई भी हैप्पी है, कोई भी खुश नहीं है। Somebody said कि the only person or two people, goddess जो है लक्ष्मी, वही एक खुश है पैसे की, और दूसरी है कुबेर जो लक्ष्मी की पैसे इन्वेस्ट करता है। माने सोचो और कोई खुश नहीं है पैसे से, so that is there. Now coming back, the question is that what is the relationship? Now if you must love books, because you cannot do a profession in publishing without having some relationship with books. किताबों के साथ आपकी कुछ रिश्ता होना चाहिए, and you like to read and you like to touch. बट किताबें जो है, जो आप हाथ में रखते हैं या दुकान से एक आध बार देखते हैं या लाइब्रेरी पे जाके आप किताब निकालते हैं, तो किताब वो आपके पास कैसे पहुंची? ये किताब जो है ये डिजाइन होती है, इट्स अ प्रोडक्ट, टैंजिबल प्रोडक्ट, और जो इसके ऊपर जो काम होती है बहुत सारे लोग इस पे, तो इस पे जो काम करते लोग वही आपका पब्लिशिंग में जो आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज जो आप क्या कर सकते हैं पब्लिशिंग के अंदर, वही डिफाइन हो जाता है। फर्स्ट दिस थिंग इज, एक तो आपको जो है किताबों के साथ अगर आपको रिश्ता है, तो एक बार ऑथर ने मैन्युस्क्रिप्ट आपको दे दिया, तो उस पर काम करते हैं पर्सन्स कॉल्ड एडिटर्स। ये एडिटर्स इसलिए ये है बिकॉज नॉट ओनली डू दे चेक फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इस पे जो है कंटेंट भी चेक करते हैं, आपको थोड़ा सा एडिशन करते हैं। किताब किस भी हो सकती है, इट कैन बी फिक्शन और इट कैन बी नॉन फिक्शन। टू वर्क एज एन एडिटर, द क्वालिफिकेशन यू नीड इज you have to be well read, but more than that you must have command of the language आपको अच्छी तरह से, जो भी लैंग्वेज पे करेंगे, आप हिंदी पे भी काम कर सकते हैं, आप तमिल मलयालम बांग्ला में भी काम कर सकते हैं या अंग्रेजी, बट जो भी आप लैंग्वेज करेंगे उस पे यू मस्ट हैव गुड कमांड, ये बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेरी वेरी
important because the end of it you are going to design a product. दूसरी जो है, जो भी आप किताब आप मैन्युस्क्रिप्ट जो पहले पढ़ेंगे उसको आप छापने की देने के पहले और किताब आने के पहले, श्री गांधी जी हमेशा एक कहते थे कि जो भी हम काम करें, नए काम इसलिए करना चाहिए बिकॉज जो भी गरीब है उसकी नज़र हमारे सामने, उसकी एक तरह से तस्वीर हमारे सामने आनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि नए काम कर रहे हैं उसको क्या भला होगा। मैं हमेशा प्रकाशक से ये कहता हूँ, पब्लिशर से ये कहता हूँ कि कोई भी किताब छापने के पहले हमें नजर आना चाहिए जो पढ़ने वाला रीडर की नजर आना चाहिए कि उसको कुछ माने इससे भला मिलेगा, इसको कुछ उसको कुछ इसमें रुचि होगी कि नहीं। सो देयरफॉर ऑफ ऑल द मेरिट्स अ बुक possesses, it should be readable. Anthony Trollope said this, a famous author, कि it should be readable. माने पढ़ना लायक हो, पढ़ने लायक हो, ये बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे ये बहुत सारे किताबें हैं मार्केट में जो पढ़ने लायक नहीं है, उसीलिए मैं कह रहा हूं that it should be readable, ये पक्का बात है। एंड देन जो है एक तरह से हमें इसकी डिजाइन करना है, इसमें भी डिजाइन की बात है। सो इन अ वे डिजाइनर एक्चुअली वर्क्स ऑन दिस, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे हो, इसको हम क्या टाइपफेस करें, ये टाइपफेस हम सेलेक्ट करते हैं और ये टाइपफेस इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि ये रीडेबल हो। You see, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं पीछे की तरफ तो चश्मा पहने हैं, यानी आंखों में आपको पढ़ने की ये होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये होना चाहिए आजकल अगर आप प्रिंट से पढ़ रहे हैं, अगर आप किंडल या कोई भी डिवाइस से पढ़ रहे हैं तो आप उसको एनहांस कर सकते हैं, वो तो मैं मान रहा हूँ अभी मैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी चोजन द टाइपफेस। और इसकी जो है, और दूसरी जो है एक और जो है पेपर क्वालिटी, पेपर भी इसकी प्रिंटिंग पेपर बाय द वे इसकी क्या ग्रामेज हो, इसकी क्या हो, उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं। ये प्रिंटिंग पेपर जो है अलग खास होता है जो आप इनसे खरीद सकते हैं, तो इसकी जो है ये होना चाहिए। और डिजाइन भी ऐसे होना चाहिए कि एक पेज को उठाए और दूसरी पेज देखे तो शो थ्रू नहीं होना चाहिए, दैट इज दैट लाइन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम यू पिक अप अ बुक, आप जरूर ये सब फीचर्स देखिएगा कि टाइपफेस कैसा है और आप कुछ डिजाइन उसमें एलिमेंट है। फिर हाउ डू यू सेल अ बुक, दे से यू सेल इट बाय अ कवर। तो कवर भी एक तरह से प्रोफेशनली इट हैज टू बी डिजाइन, हाँ, एंड इट शुड से समथिंग। जब ये बार यू विल बी सरप्राइज, ये टाइटल एटलीस्ट 6 बार इसकी जिक्र हुई कि यू नो कि ऑफ द शेल्फ में तो बहुत सारी चीजें हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं उसके बाद सबटाइटल लिखो ऑन बुक्स, बुक पीपल एंड प्लेसेस, बुक्स बुक पीपल एंड प्लेसेस, बिकॉज ये सब जो है आपको ये होनी चाहिए। दैट मीन्स इट एक्सप्लेन्स क्लियरली। उसके बाद ये जो हम कहते हैं दिस इज द ब्लर्ब, BLURB, जो हम लोग लिखते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक, इसको पढ़ के आपको लगेगा कि इस किताब क्या मैं पढ़ना मैं चाहूंगा कि नहीं, दिस इज व्हाट डिसाइड्स। एंड एक थोड़ी सी ऑथर के बारे में जो 2-3, तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू डिसाइड, एंड इसकी जो फॉर्मेट भी यू हैव टू डिसाइड कि ये तो पेपरबैक है, हार्डबैक भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द इंटेंडेड पर्पस। ज्यादातर हार्डबैक हम लाइब्रेरीज इंस्टीट्यूशंस में बेचते हैं, पेपरबैक हम इंडिविजुअल्स को बेचते हैं, और कभी हार्डबैक पे निकाल के हम उसको पेपरबैक पे करवाते हैं। जैसे रत्ना बुक्स की सारी किताबें हार्डबैक पे है बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग उस किताब को पढ़ने के बाद रखें। तो वो सब जो है, खाली मैं थोड़ी सी पहले की जो ये कहूँगा कि रत्ना बुक्स ट्रांसलेट्स फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश, हमारा छापना अंग्रेजी में है, तो इंडियन लैंग्वेजेस से कोई हमें अनुवाद करके somebody translates and gives it to us in English, तो उसी से हम करते हैं, तो that is very important. So you all have to tell me now कि what is the place of books in your lives. All of us काफी दूर से आते हैं राजधानी कॉलेज में, बट घर पे किताबों के लिए जगह होती है कि नहीं हमारे घर में? हमारी घर मॉडेस्ट होगी, हाँ, अंबानी साहब के जैसे नहीं होगी घर, पर छोटी सी भी हो, एक जगह है घर पे किताबों के लिए, वो आपको कहना है कि नहीं? और अगर है
तो बीच बीच में आपको जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, राजधानी कॉलेज में इतने सारे कॉलेज की असाइनमेंट्स देते हैं आपको, होमवर्क देते हैं, पर थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी तो कब किताब जाके देखते हैं आपकी नहीं। या किताब कभी आप, अगर मैं ये भी पूछूं, पता नहीं मुझे यहाँ आसपास में किताब की दुकान कहाँ है, मॉल पे है, उस तरफ है कि नहीं, मैंने बहुत सारी अदर थिंग्स मेट्रो से देखा, बट अगर है तो आप कभी उधर जाते हैं या कोई भी किताब की दुकान, बिकॉज दो चीजें हैं, एक तो किताब की दुकान है, मौजूद है, बन भी रही है, नई भी खुल रही है, और बहुत सारे पुराने बंद भी हो रहे हैं, तो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। और दूसरी जो है ऑनलाइन वाली सिस्टम जो है जिससे हम खरीदते हैं, बट कभी हम लेते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। द अदर थिंग इज, इसलिए मैं किताबों की जगह के बारे में, घर पे अगर एक फिक्स जगह है, इसलिए मैं जिक्र करता हूँ कि अगर हम घर शिफ्ट करें, हम यहाँ से और कहीं जाएं, हमको डाउनसाइज करना है, हाँ, रद्दी चीजें फेंकना है, तो पहले हम किताब को फेंकते हैं। ऐसे क्यों? ओल्ड न्यूज़पेपर्स के साथ किताबों को भी, बिकॉज, और दूसरी भी जो है, अभी आप सब बहुत छोटे हैं, बट मैं टीचर से ये पूछूंगा कि हमारे जो पार्टनर होते हैं या जो है, हो सकता है उनको इतनी रुचि ना हो किताबों के साथ, ये भी लेके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप जाके मार्केट में जाके, आपको भेजे हैं मार्केट से सब्जी लेने के लिए, और आप जाते किताब की दुकान और किताब लेके आते हैं, तो फिर तो थोड़ी सी तो बहस तो होगी घर पे। हाँ, और सब्जी के अलावा आपने ये लिया, किताब है, बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दीज बुक्स? यू आर एडिंग एंडलेसली टू द बुक्स। अब तो मेरी जो है वाइफ के साथ, एंड शी टीचर्स आर्किटेक्चर एट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इन LP, शी इज सीनियर आर्किटेक्ट, बट शी ऑल्सो रीड्स, बट नॉट टू द एक्सटेंट आई डू। बट ऐसे मैं जाता हूँ बुक फेयर, तो 6 किताबों से कम तो लेता नहीं हूँ। तो देन शी आस्क्स की जगह कहाँ है? तो भगवान पे भरोसा है, जगह कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे, जगह है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जगह की क्या समस्या हो सकती है। दो एग्जाम्पल्स मैं देना चाहता हूँ। एक मैं देना चाहता हूँ, पहले जो है किताबों के अलावा मैं इस बैग का जिक्र करना चाहता हूँ आपको। ये बैग जो है, एक शख्स दिखा रहा है और उसके पीछे एक पूरी लाइब्रेरी की नुमाइश है, किताबों स्टैक्ड। यस, यू ऑल कैन सी दिस। आंखों की अगर थोड़ी सी कमजोर है, आगे आके भी देख सकते हैं या बाद में। दिस बैग I got from Canada, from Toronto. This person is a person called Alberto Manguel, Manguel. Alberto is Alberto. He's an Argentinian by birth, a Canadian citizen by nationality, and a French resident. Why is he settled in France? Because he has a library of 40,000 books. 40,000 किताबें। 40,000 किताबें रखना कोई छोटी चीज नहीं है। इसने एक वहाँ 17th सेंचुरी कासल उसने खरीद दिया और वहाँ जो है लाइब्रेरी बनाया, जहाँ घोड़े रखते थे बांध पे, वहाँ लगा दिया स्टेबल पे, और किताबें तो घर पे भी आ गई। अब दिस मैन के साथ में एक ही, आपको इन्होंने 2 मशहूर किताबें, बहुत सारे लिखे हैं, 2 मशहूर, एक तो हिस्ट्री ऑफ रीडिंग की ऐतिहासिक तौर से इन्होंने कब शुरुआत हुई, उन्होंने इसमें किताब में ट्रेस किया। दूसरी लाइब्रेरी एट नाइट। बट एक बहुत बढ़िया कहानी है जो मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोग सब थोड़ा सीरियस हो गए, तो थोड़ा लाइट तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। गिरी साहब भी कहा है थोड़ा से आपका भाषण थोड़ा लाइट रखिए, तो मैं भी थोड़ा लाइट रखना चाहता हूँ। दिलचस्प बात ये थी कि इनके पिताजी, अल्बर्टो मैंगुएल के पिताजी एम्बेसडर थे, अर्जेंटीना का एम्बेसडर। बाहर से उनको वापस आना पड़ा कहीं से, तो उन्होंने पहले अपनी किताबें बहुत सारी थे, वहां सबको कार्टन में लगा के बोरी बिस्तर बांध के सारा को भेज दिया ब्यूनस आयर्स, और उनकी मैनेजर, घर की जो हाउसकीपर थी, उनसे कह दिया सारा सजा दो, बुक शेल्फ पे स्पेशल बुक शेल्फ बनवा लेना और सारी किताब सजाना मिलना चाहिए मुझे लाइब्रेरी में। बॉस कह रहा है तो मानना ही पड़ेगा, जैसे हमें अभी टीचर्स का भी कहना मानना पड़ेगा। तो उन्होंने मान लिया और सारे किताब लग गई शेल्फ के ऊपर, बहुत बढ़िया लगा, इसको बहुत अच्छा लगा। आखिरी में 2 कार्टन थे,
किताब कार्टन खोले, किताबें निकलवाई और लगाया शेल्फ पे। किताब शेल्फ लग नहीं रही, सही बैठ नहीं रही। क्या हुआ? किताबें शेल्फ से थोड़ी सी बड़ी थी। ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तो मास्टर क्या कहेंगे, हमारे साहबजादे क्या कहेंगे, किताब तो लगनी चाहिए, कार्टन में तो नहीं चाहिए। और मैनेजर अपना बहुत होशियार समझती थी अपने को, तो उसने क्या किया, बुक बाइंडर्स को बुला दिया, जो बाइंडिंग करते हैं उनको बुला लिया। कह रहा था इसका मेजरमेंट लो, शेल्फ का इतना इंच, किताब का मेजरमेंट लो इतना। कह रहा था ये किताब उन शेल्फों में फिट होना चाहिए। कैसे करोगे, तुम्हारा जिम्मेवारी है, नहीं तो तुम्हें आगे काम नहीं मिलेगा। तो ये लोग सब, मैडम हो जाएगा जी। हमारे जो लोग काम करते हैं ना, मेरी चली गई, उसके घर पे भी काम हो रहा है, तो पहले ही जो काम करने वाला आ गया, मैडम कोई बात हो जाएगा मैडम, ये हो जाएगा बहुत खतरनाक है, कभी होता नहीं, वो अलग बात है। तो ऐसे ही हुआ था कि इन्होंने कह दिया नहीं करवाना है। मैं सुनू कि घर है ऐसे। वो लोग वापस आए, किताब बढ़िया, किताब थोड़ी सी छोटी, बाइंडिंग भी बढ़िया हो गई, शेल्फ पे कितना प्यारा से लगा, बहुत बढ़िया लगा, इसको बहुत अच्छा लगा। और फोटो भी ले लिया, खींचा है, जैसे आप लोग भी फोटो खींचते हैं, फोटो खींच लिया। मास्टर भी वेरी सारा रंग। मास्टर वापस आए साहब, उनके पास कहाँ टाइम, मिनिस्ट्री में मीटिंग था, वो तो चल वैसे इधर उधर, उनका नेक्स्ट पोस्टिंग। तो एल्बर्टो मैनुएल का पिताजी का लाइब्रेरी था, तो वो खुद आया नीचे और ये देखा कि ये लाइब्रेरी में देखना चाहता हूँ, पहले बार सारा लग गया है, बड़ा घर भी है, तो सारा देखा उसने। तो ये किताबें भी शेल्फ पे देखा उसने। What kind of time are we? We are still got 11:45. So okay. So I'll quickly finish for 12 ना finish. तो जो है कि उनको लगा कि ये जो है बहुत बढ़िया, तो ये किताबें इसने कहा कि ये साइज तो कुछ फर्क है, तो किताबें को निकाला और देखा कि हर पेज पे 6 लाइन मिट गई, 6 लाइन की कटिंग हो गई। तो ही एंड हिज सिस्टर स्पेंट ए ग्रेट टाइम कि ये 6 लाइन क्या हो सकता है हर पेज, इसके बारे में सोचिए। तो किताब जो है शेल्फ पे फिट होना थोड़ा सा खतरा है। नाउ कम्स टू अदर फंक्शंस दैट यू कैन हैव। एडिटोरियल के बारे में मैंने कहा कि एडिटोरियल इज द कस्टोडियन, दे आर द पीपल हु प्रोड्यूस द बुक्स एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ बुक्स इट कैन बी। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय टेक्स्ट बुक्स, ज्यादातर स्कूल टेक्स्ट बुक्स आर मल्टी क्रोर इंडस्ट्री। पूरा रत्नासागर की जो है टर्नओवर स्कूल टेक्स्ट बुक से है। और अब स्कूल टेक्स्ट बुक्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या किताबें, तो ज्यादातर आप लोग जवाब देंगे एनसीईआरटी किताबें, ठीक है, वो सीबीएसई एग्जाम 10th और 12th के लिए है। बट अगर मैं आपको लोअर क्लासेस की बताऊं, इंग्लिश रीडर्स की नाम बताऊं, तो बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। गुलमोहर आ सकता है, हाँ, न्यू होराइजन्स आ सकता है, एडवेंचर्स रीडिंग आ सकता है, हाँ, कम्युनिकेट इन इंग्लिश आ सकता है, रत्नासागर की जो भी है, बहुत सारी किताबें अब जो है वो टेक्स्ट बुक की है। दूसरी जो है आपको टेक्स्ट बुक्स फॉर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल कोर एंड मेडिकल साइंस मेडिकल। तो टेक्स्ट बुक्स इज मोर देन 80% ऑफ द मार्केट इज टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग। प्लीज रिमेंबर, आपकी जो ट्रेड बुक्स जो कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिशर्स लाइक पेंगुइन, हार्पर कॉलिन्स, वो लोग 20% से कम की मार्केट उनके कंट्रोल पे है, और उसमें भी ज्यादातर डिक्शनरीज डोमिनेट करते हैं, तो बहुत कम मार्केट बच जाता है। दूसरी जो है स्कूल पब्लिशिंग सेक्टर पे स्टेट की डोमिनेंस है। ज्यादातर एनसीईआरटी किताब जो आपकी केंद्रीय विद्यालय, अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं तो आपको एनसीईआरटी किताब यूज करना पड़ता है। उन्होंने एक बार कोशिश किया था किसी और पब्लिशर से भी, हो नहीं पाया। या नवोदय विद्यालय जो है एनसीईआरटी इज वन ऑफ द ह्यूज स्टेट सेक्टर्स, और पब्लिशिंग है। और जनरल किताबें, स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, उसमें एनबीटी की हाथ भी है, सीबीटी की भी है, बट एनबीटी ज्यादातर नेशनल बुक ट्रस्ट जो डोमिनेट करते हैं, तो वो दैट इज डोमिनेटेड। नाउ कम्स
विच सेक्टर यू वांट टू वर्क, तो स्कूल पे तो स्कूल सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए. एंड मेनी ऑफ द पब्लिशर्स आर कमिशनिंग टीचर्स टू राइट बुक्स, जिसके पास क्लासरूम की ये हो, एक्सपीरियंस हो, और जो है जो क्लासरूम टीचिंग या टीचर्स इन कॉलेजेस. तो पता नहीं यहाँ सब बैठे हैं आपके टीचर्स, कभी ऑथर भी बन सकते हैं. और अगर किसी टीचर ने सब्जेक्ट पे टेक्स्ट बुक लिख दी जो स्कूल पे लग गई, तो फिर तो मैंने सोचो कि इज्जत बन गई उनकी, मैं भी उनका दोस्त बनना चाहूंगा. It is in crore, the royalty is in crore depending on the quantity. Now इस सेक्टर पे please remember कि it is not a level playing field. ज़्यादातर लोग NCERT because CBSE affiliated schools are more tending to use level playing field नहीं है, rather than अब इसमें syllabus भी change हो रहा है, तो that is there. But even then whatever is left is huge. Plus remember there are digital players, there are e-book players in this who are not publishing textbooks but publishing material online. One of the biggest names in that business is Byju's, which is facing serious problems, but you know that they started out as, Ravindran started out as a training for the IITs and all that. उसके बाद ये textbook इस पे आ गया, अब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में खड़ा बढ़ गया. बिफोर दैट अगर आप रास्ते लेके रिंग रोड से गुड़गांव की तरफ जाते हैं, गुड़गांव वो फ्लाईओवर धौलाकुआं से, तो एक आपको बिल्डिंग आएगा कंट्री इन एंड स्वीट्स के पास बगल में एजुकॉम करके. एजुकॉम वाज आल्सो अ मेजर प्लेयर और फोल्ड अप हो गया, बॉट अप बाय बायजूस, खत्म हो गया. तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स जो है, बिकॉज प्राइवेट पब्लिशर्स की जो किताबें होती है वो टीचर्स तैयार करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, एंड इट इज सीन बाय एटलीस्ट 5-6 पीपल. ये लोग की जो मटेरियल पता नहीं है क्या है, ऑनलाइन प्लेयर्स भी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा. दैट इज एज फार एज स्कूल पब्लिशिंग. कॉलेज पे डेफिनेटली यू हैव टू सी कि एक टेक्स्ट बुक नहीं, कोई बात, बहुत सारे चीजें जो है कोर टेक्स्ट के अलावा रेफरेंस मटेरियल भी बहुत होती है. वट एवर डिसिप्लिन इट इज वो आपको चाहिए, जो भी सब्जेक्ट्स आप ऑफर करते हैं, तो वो भी एक है. एंड मेडिकल एंड साइंस ऑफ कोर्स ज्यादातर टेक्स्ट बुक की है, तो इट दैट इज पब्लिश. बट मेडिकल रेफरेंस पब्लिशिंग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलिस्ट यूज करते हैं, वो आजकल ई बुक के तौर से दैट इज नॉट पब्लिश्ड एज प्रिंट, इज पब्लिश्ड एज ई बुक्स एंड सो ऑन. सो दैट इज वन एस्पेक्ट एडिटोरियल. इसके अलावा इन पब्लिशिंग इफ यू हैव गॉट अ थोड़ी सी इंक्लिनेशन, तो सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, these are also functions. If you can have promotional qualities in you और आप उसको कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी आपको definitely career opportunity है, which is good. You can interact. और the advantage of publishing is this कि आप थोड़ी सी आपका उठना बैठना टीचर्स या प्रोफेसर्स के साथ है. नो ये अगर आप अच्छा लगता है आपको, तो एक तरह से इट इज आइदर ए प्रोफेशन जो थोड़ी सी भाग दौड़ से थोड़ी अलग है, बट इसमें भी थोड़ी सी आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मीटिंग. सो यू आर मीटिंग एजुकेशनिस्ट इफ यू आर प्रमोटिंग स्कूल बुक्स, यू आर मीटिंग टीचर्स इफ यू आर पब्लिशिंग यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स, तो प्रोफेसर्स के साथ. फॉर दैट प्रमोशन यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेसर योरसेल्फ, बट यू ऑट टू नो. आपको थोड़ी सी किताबों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, विच यू कैन. एंड यू हैव टू मीट लाइब्रेरियंस. लाइब्रेरियंस आर अ डिफरेंट स्पीशीज, वो लोग भी बहुत अलग किस्म के लोग होते हैं, तो आपको उनसे भी मिलना पड़ेगा. एज फार दूसरी जो स्टेक होल्डर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर किताब की जो होती है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की किताब अगर नहीं पहुंचा, अगर आप नॉर्थ कैंपस पे जाए या साउथ कैंपस पे जाए, तो आपको कैंपस बुक शॉप मिलती है. कैंपस बुक शॉप स्टॉक्स द बुक्स दैट आर यूज्ड देयर. तो वहां एक डिस्ट्रीब्यूटर, इट बेसिकली है बुक डिस्ट्रीब्यूटर सिट्स, जो रिटेलर करता है. और कैंपस की जो है वो एक तरह से टेक्स्ट बुक सेलर या स्टूडेंट सेलर जो है उनकी एक शॉप्स होती है. बट ट्रेड की किताबें जो जनरल रीडिंग के लिए है, जैसे ये भी हो, तो वो आपको बुक शॉप्स, जनरल बुक शॉप से मिलती है. तो उस पे भी जो है, अगर आपको अपनी किताब वहां लगाना है पब्लिशर से,
तो फिर आपको वहाँ जाके ये प्रमोट करना पड़ेगा, आपको प्रमोट करके कहना पड़ेगा कि इसमें क्या ये है. Now I will start closing with just a few things that I wanted to read from this book. One is that there is a writer by the name of Ruskin Bond. आपने नाम सुना है? Yes, sir. My name is Bond, Ruskin Bond. आपने सुना है कि नहीं? हाँ. रस्किन बॉन्ड जो है एक तरह से ऑथर रहे, पेंगुइन, रूपा के ज़्यादातर, रत्ना सागर के भी ऑथर रहे, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक कविता लिखा ऑन बुक्स, what books mean to him, and I think that I want to read today. It is addressed to everyone who loves books. We who love books. We who love books. Some books I'll never give away, though old and worn, their binding torn. Upon my shelves, they'll always stay. Alive, still read, still fresh, each dawn, their magic moments never gone. Familiar friends, these timeless tales have been with me since I was 10. And as I turn their pages once again, I feel and love their old refrain. Great verse, great thoughts, still stand the test of time that's passing by so fast. These good companions never fail to give me joy, to nourish me. We who love books will always be the lucky ones, our minds set free. This is a very, very important poem just by someone who loves books and who thinks of books, and therefore access to books, publishing books, reading books, they are always the hallmark or indication of the culture of a society, of also of a people and of their state of mind. And that is why we are trying our best to try and strengthen this reading culture, to try and strengthen this, fondness for books and a closer relationship. And I think that is what is important. This publishing industry is growing. We are now looking at annual value of this at about $7 billion. $7 billion is not a joke, Nielsen. The industry is growing at the rate of about 16 to 18% per year. We don't have people to manage this. We lack people. But before one enters and chooses publishing as a career, 2-3 things you have to keep in mind. One, as I said, qualifications and the interest as far as books and language, depending on what level you want, because editorial is always considered to be a very, very high level of entry point, but there are others. But you have to keep in mind, one, that interest. And also you must keep in mind the remuneration. Salaries that you will get in publishing may not be the best, as you can get perhaps in the session that is going to follow, called animation, right? And the third thing is, please remember कि घर पे भी बहस हो सकती है कि क्या कर रहे हैं. अच्छा, publishing क्या होता है? And publishing, generally people understand printing. They think it's printing. It is not printing. Even Oxford University Press is not a printer. Publisher है, press इसलिए है because it's the department of the University of Oxford. तो Department of Philosophy है, Department of Mathematics है, Department of कुछ भी है, Management, Department of Languages है, वैसे Department of Publishing है. They can't call it department, उसीलिए press है. But press, printing press नहीं है. Printing तो वो लोग अलग से करते हैं. So this is very important for you to be able to explain कि क्या है. But one thing is there. It is useful to do a course in publishing to get an introduction to it. NBT की कोर्स होती है, उर्वशी मैम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते. बेटर टू डू इट if one is getting into after doing post graduation, according to me, not after graduation. After post graduation, उसमें आपको not only will you get lectures, you also have to do a project. And lastly, I would like to say a lot of you will be interested in some relationship with books. Some of you may be poets
कविता लिखते हैं, सम ऑफ यू मे बी राइटर्स, कुछ ना कुछ कहानी। मेरा जो है आइडियाज जो है आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में, जो भी है आपका लैंग्वेज, बट आप सिचुएशंस को देखिएगा और एक दो पन्ने जो है हर दिन लिखिएगा। बट यू गो अराउंड की सिचुएशन क्या है, हमेशा पॉकेट में एक नोटबुक रखिए, या फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो फोन पे रखिएगा, कि कोई भी आपको दिलचस्प सिचुएशन लगेगा और आपको कुछ लिखना है उसके ऊपर। और दूसरे जो है, मुझे जो लग रहा है कि आपके साथ जो बैठे हैं, आप अपने मित्र के पास बैठे हैं, ये सही है कि नहीं? आपका मित्र आपका बगल में बैठा है कि नहीं? वो तो कह रहा है मैं तो मित्र नहीं, ऐसे ही बैठ गया, क्या है? हाँ, आपके मित्र बैठे हैं, हो सकता है बहुत करीब भी हो, सारे आपकी जो भी आपके बारे में उसकी पूरी जानकारी है। किसी को भी इतना जानकारी नहीं देना चाहिए, इसमें जो है खतरा भी है। बट जो है कि जो भी आपको अच्छा लगे वो जानता है ये। आप वो जो कहता है कि ये देखो भाई इतना बढ़िया, वहाँ इतना बढ़िया होटल आया है, वहाँ जाके खाना खाते हैं, तो आप वो मान लेंगे तो बढ़िया आ रहा है। किसी और इस पर बहुत बढ़िया इडली डोसा देता है तो आप जाके खा लेंगे, या किसी और शॉपिंग इसमें बढ़िया आया है, हाँ इतना बढ़िया जूते मिलते हैं, या जूते अपने सर पर ना लगे, पर अच्छी है पहनना है, और दूसरी जो है बैग्स मिलता है, जो भी है। बट अगर किसी ने आपको किताब रेकमेंड किया तो उसके बारे में तो आपको थोड़ी सी सोच पड़ेगी। अगर आपने वो किताब ले भी लिया तो उसको पसंद करेंगे ही नहीं, उसके ऊपर है। दैट इज वाई दी बुक्स हैव एन इंडिविजुअल अपील, ये बहुत जरूरी है। और आपको जो है अगर उस पर काम करना है तो किताबों के साथ आपकी दुनिया ये है। और लास्ट मैं अभी एनिमेशन और पब्लिशिंग का मैं एक ये करूँगा, बिकॉज दिस इज एन एक्साइटिंग प्रोफेशन। बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट पब्लिशिंग इज कि आप किसी भी पब्लिशर से मिले, जो भी है, वो लोग जो है एक तरह से, अनलेस इट्स अ फैमिली प्रोफेशन, आपके फैमिली ने शुरू किया, जैसे रूपा वालों की अभी किताब आई है राजन मेहरा की, जैसे फैमिली शुरुआत किया तो रूपा ज्वाइन किया, करना पड़ा उनको। बट और भी कोई प्रोफेशनल पब्लिशर्स मिलेंगे तो वो लोग ज्वाइन किए थे, पता नहीं था क्या ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं था, बट कुछ भी ना सोचे, ऐसे बैठे बैठे उनका 20-25 साल गुजर गया पब्लिशिंग। ये बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ, उर्वशी भी जब वो कोर्स पे थी, कि बहुत सारे मेरे बाद में, मैंने कहा इतना सवाल हो तो बाद में उनसे पूछ लेना, उनसे सवाल जो मेरे सवाल से पूछोगे मुझे, वो लोग जवाब देंगे, मैंने कह दिया उससे। बट मैंने एक कहा था कि बहुत सारे लोग को जो है खाली एक ही सवाल आप पूछिए, उम्र मत पूछिएगा, बट उनसे ये पूछिएगा जरूर कि कितने साल वो पब्लिशिंग में है। आपको अलग से जो है एक तरह से 20-25-30 साल, अभी मुझसे मत पूछिएगा कितने साल मेरी होगी, ना उम्र ना पूछिएगा, ना कितनी साल तजुर्बा भी है वो भी ना पूछिए। बट इट इज अ फैक्ट दैट पीपल जस्ट स्पेंड, सो दैट मींस देयर इज समथिंग। लास्टली वी आर नाउ यूजिंग एनिमेशन इन बुक्स, और ज्यादातर हम स्कूल टेक्स्ट बुक्स में एनिमेशन यूज करते हैं। आपकी जो रीडर्स और आप लोग जो करते थे उसको आप जो पुराने वाले टेक्स्ट भूल जाइए। नाउ द विजुअल इन अ बुक इज नाउ, वी हैव अ ऐप, वी हैव सॉफ्टवेयर, वी डाउनलोड इट ऑन आवर फोन। हम उस किताब को स्कैन करते हैं, पिक्चर स्टिल होती है, जब आप फोन पे प्लेबैक करते हैं the picture is animated. So we are introducing 2D and 3D animation. It's expensive, the books are expensive. Ratna Sagar is collaborating with Disney to introduce animation. And animation is going to be a wonderful career option for you, perhaps even better. अगर साहब की मैं काउंसलिंग शुरू होता तो हो सकता है मैं एनिमेटर बन जाता and not a publisher. But believe me, if you all are interested, it's worth getting more information on it, and please try and attend a program. All aspects of publishing, I've just been able to touch upon a few, but it is good for those who like, and you get at the end of it, you must have a well designed product which you like to read and which you like to keep. Thank you very much. Thank you, sir, for your discerning words. We indeed got a lot to learn from this enlightening and thought-provoking talk.
Now, if anyone has a question from the audience. Anything, it can be if you want to write something, if you want to ask about prices, why are books so expensive, anything that you want to ask. Good afternoon, sir. Yeah, So, before I ask my question, I'll tell you a little bit about myself. please. So, I'm a history honors first year student, and I'm very interested in creative writing. Right. Like, I'm a poet, I'm a children's poet, I write a lot of poems, and I am also working on my own novel right now. Okay, Congratulations. so thank you so much. I started doing this in school, and I showed my poems to my teachers. They told me, you write at least 20 poems or something, and you give me a set, I will take it to the publisher. Because at that point, and even now, I was interested in publishing my work, right? So right now, I have achieved that goal of 20 to 25 poems. But now the issue is, if I go into a local publishing house, right, it will not give me the promotion or the sales I want for my book compared to maybe Penguin, maybe Ratna Sagar, right? So as a creative writer or author, amateurish author who does not have his name out there in the industry, how do I go into a good publishing house expecting my work to sell? Very frankly speaking. No, firstly, before the work sells, it's important to get it published first. Yes, That's yes. important. Now, don't worry too much. Please sit down. Don't worry too much about local or international, whatever. Point is this, that as a genre, publishers are a little reluctant to publish poetry as such. There is always a feeling that that poetry books don't sell. There is a misnomer. Actually, no effort is being made to sell or to promote. Our second speaker is a poet, by the way. A poet. Okay, they're very important. But recently, unless the poetry is published as part of an anthology, but recently Juggernaut, the publisher, published a young poet. For some reason, a sensitive editor saw her work. Her name is Mehak Goel, the author's name. Please try and pick up this book if you can. I've been a bit of a mentor to her. It is called Failure to Make, it's a very peculiar title, Failure to Make Rounded Rotis. Seriously speaking, failure, you can see all your teachers in the front row smiling. Failure to make rounded rotis, and this is an experience perhaps students don't have to face at this stage in their lives. But these were the pressures on a young girl who got married and the pressures on a daughter-in-law to make rounded rotis. Right? So rounded rotis are a thing. Now my point is that if you want rounded rotis, go to the nearest tandoor and get rounded rotis or make them yourself. But that is a different thing. Now these poems, and like that, the trials and tribulations, and many of the friends here will also sympathize with that, and I don't want to get into a elaboration of this so much. But you must understand one thing, and we need to be gender sensitive, but also the pressures, and sometimes we see it in our own families, the pressures on a girl child and on a male child are different, right? And generally, I mean, the sign of accomplishment is somehow get through the education, get her married off, and that's it, your responsibility. And I hope some of the sensibility comes through in the classrooms as well when we are having our lectures and so on. Now, so somehow, because that was sound, and then that just cut off, like anything took off, it got launches, it got some book prizes and all that, but that is not necessarily true. Now, there are alternatives to going to some of these big houses also, but they are not perhaps inexpensive. They are not, because today, I have not said this, but publishing, which did not change perhaps in the last 200 years, it was a tradition bound industry. In the last 20 years has changed completely. Today, all kinds of things, apart from digital publishing or e-books, which are really amending print run, the physical books print run, you are now having publishing where the author himself is a publisher. This is happening, self-publishing, and this time in the World Book Fair at Pragati Maidan,
at least 2, 3 self-publishing platforms, very attractive ones were there. They have given a complete model of actually putting your book through. And they are people who tidy up and everything, but will not pass judgment call on whether your poems are good or not. But they will leave it and they will print it and they will leave it for others to call. So my point is that if you have got a bunch of 20 poems, right, on different themes, Yes. okay, is it possible for you to get this read? Get this read, not just by your teacher, but can you get it read? Do you have some close friends whose opinion you value? Or once you give them the poems, they won't be your friends? Tell me, do you have some friends who opinion you value? Do you? I could not say friend, but I could say, friend, I know. They won't be your friend also afterwards. Maybe my parents, maybe my teachers. Okay, maybe yeah, someone but like not somebody like that. Is it possible that some people who are a little more literary, an aunt, uncle, or my some, sister. yeah, why not? Why not? Great. I hope relations are good with your sister. But do please ask her and ask them to give you uncritical, unreserved. That is it. Because poetry, let me tell you, is very personal. Sir knows he is a poet, but it is a fact. I have been asked to read poetry. We have published poetry back in the days in Oxford University Press because my boss at that time, Ravi Dayal, who was Kushwant Singh's son-in-law, who recruited me in OEP, published poetry and he loved it. So we did it at a certain, but many OEP doesn't publish poetry anymore. Not from Oxford, not from here. Even K.K. Daruvala was published by us. And if you see my book, I've got a wonderful preface is written by K.K. Daruvala in this. I mean, he has just gone to town on this book. You know, he has said it is for the connoisseurs, but I told you don't say connoisseurs because then market बहुत limit हो जाएगा. But the point that I wanted to try and say was the poetry is personal. Yes. You have to have it read by others to see. And so when this girl wrote, which is of her own experiences, when she wrote this failure to make rounded roti resonated with a lot of the audience. A lot of girls, a lot of women could sympathize, empathize with her. And that is how a market developed. You know, otherwise, you know, it would not. Now, many others, and this juggernaut that published it may have been the end part. Maybe she went to 3 or 4 publishers. So you have to see how, but poetry as such, is it possible that you could have some stories? Could you write some prose also? Maybe. But poetry, if you are and that sensitive, if you get it read, not just by your sister, try and get it read by a few key, if it is good. Is it in English or which language? It's in English. English, yeah. So then you try and see. And can you also do one thing? Can you arrange for a select reading of the poems with some audience, with some friends? Maybe you may have to provide some tea, coffee. But you may and then just get some. Poetry is something that has to be not just appreciated by you. You are the poet. Yes. But it has to be appreciated by an audience. And they must be sensitive. Yes. Right? Like, for example, the poem of Ruskin Bond I just read out was something that resonated because it is something that shows his love for his books. You see? So that's what. Yeah. Anything else you want to ask? So yes, as I told you, I was also working on my novel. This is my 3rd attempt. So I was right on prose. Yeah, this is my 3rd attempt. I was like, first one is too cliche, second one is like too copied, third one so I had to scrap a lot of times, right? So, and then my sister told me ki, you write your whole thing and then you get it read by me or by someone else. Because my sister has done English honors in literature, so she knows her way around books, right? So yeah, I do value some people's opinions, right? So yeah, that's what I was working on. But thing is, with the novel or with the story, that writing it is first of all very difficult. It's complicated because it takes a lot of more thought, right? I could tell you, I write a poem in 35 minutes, and it's a good poem, at least in my opinion. At least in my opinion. See, no poet will ever say he wrote bad poems, right? He will not. But anyway, but a novel is much more complicated, it's much more time taking. So yeah, so once I'm through with the writing process, the thing that is standing as an obstacle is, will whoever I take it to like it or not? Right, so yeah, how do I clear that particular obstacle? Because to some extent, novel writing is also very personal.
it's very genre bound and also very biased towards whoever is writing it. Yes, of course. You see, but remember one thing, that it depends on what is the theme of the novel that you're writing, what is the story and what is the content. But it's not still as personal as poetry, but there's an outpouring of feelings. Here you may be describing situations. Yes, You may yes. be describing characters. It kind of situational. Depends on whether it's fiction or non-fiction. If it is fiction, it's a different set of principles. fiction. Yeah, and then otherwise non-fiction, whatever. So therefore, from fiction point of view, but in the poetry is very personal, and I think that the question of this novel again, you have to, because I would suggest that as far as the novel is concerned, you have to make first a synopsis if you are ready with it, chapters, and you have to prepare 1 or 2 sample chapters. 1 or 2 sample chapters must accompany your proposal, because that must give the reader an idea, whoever it is reading. It could be a publisher, it could be an agent. And one of the things that you could do is you can now have the opportunity of meeting up with or sending this to agents. You don't have to send it to the publisher. Who are agents? Literary agents. Literary agents interface with the publisher, right? Literary agents. And they are the ones who, if they like it, they may suggest sometimes some things for improvement, but if they like it, they can actually get a publisher to accept. Right. That is happening now. So this is something that you could try and do. The third option, as I said, is something where you can think of investing. Of course, you are young now, but nowadays things are getting more and more economical, where you have a possibility to see a few copies in print form, only to that extent which you keep, and there is every possibility of you being offered a publishing contract on the basis of that also, because these things can be designed and so on. But you got to work your way around that and see, because otherwise it can be done for you or you can get it designed by people. But I would like to wish you all the best, and try and persevere. You should not give up. Thank you. Because you are young, आशा है and उम्मीद है, ये दोनों तो मौजूद होना चाहिए. Thank you so much. Yes, sir. I was going by the clock there and I finished 5 minutes to 12. I should not be at fault. Good afternoon, sir. Sorry, sir. I'm Francie from BSc Honours Mathematics, 3rd year. And You have something in this magazine, I think, no? Yes, she's the Yes. editor. She's the editor. Yeah, I have something on this. So not bad for my memory. thank you, sir, for the acknowledgement. So my question is, like, as a publisher, what are the qualities that you look for in the authors that come to you, or how do you decide that you want to work with a particular author, apart from the content that he has given to you? And there is one more question. I want you to shed some light on the relationship between an editor and an author. That's very good. Excellent. Let me start with the last one first, which is editor and author. It is a relationship that has its ups and downs. Not an easy one, and so on. And recently, there is a book done by somebody, again, all of you all might know, Ramachandra Guha. Ram Guha has just done a book which I am reviewing now. I've just finished reading it yesterday. And it's called The Cooking of Books. The Cooking of Books. And मैंने बिल्कुल पकाने की चीज़ है. And please sit down. This thing is on a relationship with a colleague of ours in OEP called Rukun Advani, who's now settled in Ranikhet, and how with him a relationship grew where he became the foremost editor. And we are talking of boy earlier said about 2 or 3 times you have junked that novel and you are redoing it, na? You said. Yes, sir. So right. Yes, sir. So in this case, 4 drafts of a biography of Very Relevant were junked before they were finally accepted by Rukun. So that's a very nice relationship. And the only way, let me give you a graphic illustration of another aspect, since we are, Principal Sir has said keep it as light as possible. Let me give you an example of a relationship of my former boss Ravi Dayal with an author as the editor of his. And I got to stand up for this, to tell you this. And let me take off my glasses also. The author was Karan Singh, Dr. Karan Singh. He had given his autobiography
called Heir Apparent and Sadar-e-Riyasat to OUP for publishing. It went to Ravi Dayal for editing. In the process of that, Dr. Karan Singh, some of you all may know him, have seen him, at least seen pictures of him. He wrote that he was traveling in Europe and he met the renowned, who's physically challenged, Helen Keller, right? Dr. Helen Keller. Dr. Helen Keller sensed his presence because people had told her, and she asked him to come closer. He came little closer. She said, not in Hindi, or Kareeb. So, came even closer, okay? And Karan Singh was a little apprehensive. Kyun itna kareeb kyun bula rahi hai? Maine she came so. She took her hand and asked him so that she could reach him. I don't know if it's permissible today, but she came and put her hand like this, from forehead to chin. And she said, and this has been stated in the India Answer Center, I was also in that panel, she said, handsome. So Dr. Karan Singh was very happy because how many of us have that experience, sir, of getting, a young pretty lady. I've been trying to get my wife to do that, but she's refused for so many years. So he said handsome, and he put it in the manuscript. Ravi Dayal, it went to him for editing, took out his red pen and struck that line out and wrote within brackets, presumptuous. And Karan Singh was Union Minister for Tourism and Civil Aviation. These two portfolios combined, could not get that reinstated. So Karan Singh, when he mentioned the story at our Ombrans meeting, Ravi Dayal passed away in 2006. I wrote, when I also spoke after that, I wrote to Dr. Karan Singh, I said, dear sir, the consensus in the house was not that Helen Keller was wrong. You are indeed handsome. But whether it should be in the book. You know what Karan Singh replied afterwards to me later? He said, Anand Sahab, I have managed to get this put in another book. So that is the thing. The other is the question of that what you look for. I think the question is very simple. Again, that how far, apart from the content, but how far does the author, when you speak to the author, how far does the author seem confident of the subject, seems in command, and so on. And it depends. We have had academic authors mostly in Oxford University Press. I've dealt with general authors, but Oxford University Press authors, generally some of the editors are themselves also highly qualified. I myself have university, Rukun has a PhD from Cambridge, and there are many others who have had teaching and research experience, editors, mind you, at that time. And generally many of these authors who came there said that the interaction with those editors was like another PhD viva. That was the intensity, and then you kind of defend and you can. And I remember that sometimes queries are raised, sometimes it requires a lot more points, sometimes deletions are suggested. And eventually in that shaping, the cooking of books, as we say, the editor's role is such that it becomes readable. That is why when we pick up a book, we don't know what has gone behind. And mostly all these editors are behind the scenes. They are unsung, unacknowledged, and they are unwept. You don't know them. And, but they are the ones. Occasionally now, authors are putting in and they are permitting, they are acknowledging the role of editors. In OUP, we had a standard rule, no editor's role should be acknowledged. None of our names appeared, whether the author thanked us or not. Very often the authors did not want to thank us, but that's another story. But that is the way, and you deal with authors like Romila Thapar in history, or people like Kanika Sarkar and so on. I edited her books. Or the former principal of Rajdhani College, Dr. R.M. Pal they selected works of Evan Roy, which was edited by Shiv Narayan Rai, who's a professor for 23 years in the Lathrop University in Melbourne. And all that was done by us. And I was the editor for that. So there were a lot of queries that we had. But because then only, if you are doing that, so it depends on what is the subject area or what is the genre of books that you are dealing with. Similarly with children's books, with school books, you've got to be very sensitive. You see, it has to be, in the center, it has to be not just, you've got to look at roles. So you can't have, gender insensitive, and you've got to keep age factor, you've got to keep all kinds of things. And you've got to show inclusiveness today in the textbooks, and you've got to show diversity. That's what you're looking for. Thank you.